Alright, so let us start today's session with comparison between progressive wave and stationary wave. तो लास्ट सेशन में हमने स्टेशनरी वेव्स के प्रॉपर्टीज देखे थे इन डिटेल एंड आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स. पहला तो उसका डेफिनेशन ही था. क्या था डेफिनेशन? दैट व्हेन two progressive wave traveling along same path but in opposite direction interfere, the resultant wave so obtained is in the form of loops, right? And such a wave is called as stationary wave. Then there are few points in the medium which have zero displacement. Such points are called as nodes. Then there are points with maximum displacement. Those are called as antinodes. The distance between successive nodes or antinodes is lambda by 2. स्टेशनरी वेव जब फॉर्म होता है तो मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ, राइट? अल्टरनेट नोड एंड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड. तो किसी भी एडजेसेंट नोड और एंटीनोड में डिस्टेंस था लैम्बडा बाय 4. ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि ऑल द पार्टिकल्स विद इन अ लूप, एक लूप में मतलब दो नोड्स के बीच में, इफ यू रिमेंबर, दो नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल दिस पार्टिकल्स वर इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन. मतलब सारे के सारे एक साथ मोशन परफॉर्म कर रहे हैं एसएचएम विथ सेम पीरियड बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड. तो सारे के सारे पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स विद इन अ लूप, they are all going together up towards positive extreme. They are all coming down towards mean. So they are in the same number of oscillation. So all these particles were in same state of vibration या same state of oscillation. इसके बाद next point was here, जो adjacent loop था, adjacent loop के जो particles थे, they are out of phase by 180 degree. Then we saw कि ये जो wave है, it has zero velocity, hence it does not transfer energy from one point to another. So these were all more or less all the points जो हमने देखे comparison के, sorry, properties देखे हमने stationary waves के. And today we want to compare. So comparison between progressive and stationary wave. Progressive and stationary wave. Stationary wave. So we want to compare these two waves. Okay, so let us write down progressive wave here. Progressive and stationary. And stationary. So, what do you know about progressive wave? How will you start comparing? What is difference between these two waves? क्या क्या पता है आपको? प्रोग्रेसिव वेव में जो एक डिस्टरबेंस होता है, अगर याद होगा डिस्टरबेंस हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने एक लेक स्टिल वाटर एट रेस्ट, उसमें एक स्टोन ड्रॉप कर दिया था, तो वो जो डिस्टरबेंस था, दैट डिस्टरबेंस वाज बेसिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन ऑफ द मीडियम. या फिर एक रस्सी लिया, एक एंड दीवार पे बांध दिया, दूसरा इज इन योर हैंड, देन यू गिव इट अ जर्क, आप उसको वाइब्रेट करते हो. तो ये जो डिस्टरबेंस है, दिस डिस्टरबेंस ट्रैवल्स फ्रॉम वन रीजन ऑफ द मीडियम टू द अनदर. वेयरएज स्टेशनरी वेव में ये जो डिस्टरबेंस है, इट इज लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड मतलब जहां पे वो डिस्टरबेंस जनरेट हुआ है वो वहीं पे रहता है. इट डज नॉट गो फ्रॉम one point of the medium to another. This is first difference. In progressive wave, the disturbance travels from one region of the medium to another region, right, with some finite velocity, definite velocity. In stationary waves, the disturbance is localized. It remains in the region where it is produced, and hence there is zero velocity. So point number one, in progressive wave, the disturbance travels from one region of the medium to another region
with definite velocity, with definite velocity. Here, as you know, in stationary wave, the disturbance remains localized. अब इसको localized का मतलब होता है it remains, the disturbance remains in the region where it is produced. In the region where it is produced. Right? Therefore, stationary wave has zero velocity. Stationary wave has zero velocity. It has zero velocity. Number two, what else you can say? और क्या बता सकते हो? Amplitude हर एक पार्टिकल का सेम था क्या? नहीं. तो in progressive wave, the amplitudes are same or not same? Not same. पक्का. तो स्टेशनरी वेव में क्या था? फिर सेम था. इसमें yes. So in progressive wave, what you know is in progressive wave all the particles have same amplitude, right? Same amplitude and time period same. And in case of stationary wave, all the particles of the medium have different amplitude. So easy. In progressive wave, all the particles performing SHM have same amplitude. यहाँ पे in stationary wave, all the particles have different amplitudes. Right. Then what next? अगला क्या बता सकते हो? All the amplitudes are different in stationary wave and here it is the same. What next? Transfer of energy and not transfer of energy. Good, but that will come later. थोड़ा पहले basics देख लेते हैं. What else? Progressive wave में हर एक particle vibrate होता है. In progressive wave, all the particles of the medium perform SHM, whereas in stationary wave, there are few particles which remain permanently at rest. So here you can say, in progressive wave, all the particles of the medium perform simple harmonic motion. यहाँ पे आप बोल सकते हो all the particles except for the particles at nodes, except for the particles at nodes perform SHM, perform simple harmonic motion. अगला point, if you remember, the moment you say they perform simple harmonic motion, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रोग्रेसिव वे में आपको याद होगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ मीन पे आते हैं क्या? No. But in stationary wave, all the particles they cross their mean position at the same time. This is important. हमने देखा था स्टेशनरी वे में, अभी भी बताया मैंने, जस्ट स्टार्ट करते वक्त ही बताया कि अगर आपके पास एक स्टेशनरी वेव है, उसमें अगर एक लूप है, तो लूप के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे आएंगे. मतलब ऑल दिस पार्टिकल्स दे क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, वेयरएज यहाँ पे ऐसा नहीं था. एंड यू नो दिस, क्योंकि प्रोग्रेसिव वे में हम बोल ही रहे हैं ना कि कभी कोई पार्टिकल मीन पे है तो कोई एक्सट्रीम पे है तो फिर कोई कहाँ पे है.
so they are not crossing their mean positions at the same time. So here in progressive wave, the particles of the medium cross their mean positions at different instants of time. So in progressive wave, the particles of the medium cross their mean positions at different instants of time. Whereas here in stationary wave, all the particles within a loop, बोल सकते हो, within a loop cross their mean positions at the same time, या फिर simultaneously, एक साथ सबके सब मेन पोजीशन को क्रॉस करेंगे, राइट? देन व्हाट एल्स यू कैन से? डू यू रिमेंबर, हमने कल ही देखा था और आज भी मैंने बताया, एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे आर ऑल इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, दे आर ऑल इन द सेम फेज। मतलब सारे के सारे एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सारे के सारे इन सब का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे मीन से अगर स्टार्ट होते हैं तो सारे के सारे एक साथ अपने 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 रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड पे एक साथ पहुंचेंगे, राइट? फिर एक साथ वापस से मीन पे आएंगे, फिर एक साथ वापस नीचे जाएंगे, फिर वापस से मीन पे आएंगे। मतलब दे आर ऑल इन फेज, all the particles within a loop they are all in the same state of vibration। अगर ये पार्टिकल नंबर 1 है, इसका पहला ऑसिलेशन, तो पार्टिकल नंबर 2 का भी पहला ऑसिलेशन, 3 का भी पहला ऑसिलेशन और 4 का भी पहला ऑसिलेशन। अगर पार्टिकल नंबर 1 उसके एक्सट्रीम पे है, उसका एक्सट्रीम यहाँ पे है, तो पार्टिकल 2 भी अपने एक्सट्रीम पे है उसी टाइम पे। मतलब इन सारे के सारे का फेज एंगल होगा π/2। आपको पता है मीन से एक्सट्रीम तक π/2 एंगल कौन होता है, राइट? फिर वापस आएंगे तो वापस एक साथ आएंगे, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स का मीन मतलब फेज एंगल इज π/180 डिग्री। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे यू नो एडजेसेंट पार्टिकल्स, मैंने अभी बताया आपको, इन दिस केस कोई पार्टिकल मीन पे है तो कोई यहाँ पे है तो कोई यहाँ पे है, कोई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। सो हियर नॉट इवन द एडजेसेंट पार्टिकल्स आर इन फेज, राइट? ओके। और एडिशनली स्टेशनरी के केस में all the particles in the adjacent loop are out of phase by 180 degree. So this is one more basic difference. So you can say in progressive wave, the adjacent particles, मैं adjacent particles की बात कर रहा हूं, आपने गलती से भी all the particles लिख दिया तो गए, क्योंकि आपको पता है progressive wave में, do you remember how do you define wavelength? The distance between two successive particles which are in same phase of vibration, that is wavelength। फिर अगर आपने यहाँ पे बोल दिया in progressive wave all the particles are not in phase, फिर not in phase तो फिर ये कैसे डिफाइन किया? इसलिए adjacent word is important। So in progressive wave the adjacent particles are not in phase, मतलब they are not in the same state of vibration। आप बोल सकते हो they are not in the same state of vibration, right? Good। सिर्फ adjacent particles की बात कर रहा हूं मैं, I am not talking about any particle, I am talking about just उसके बगल वाला adjacent, right? ऐसा हो सकता है, होता ही है। ये वेव देख लो, अब ये पार्टिकल था मीन पे, पहला ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा,
दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, मीन पे नहीं है लेकिन पहले ऑसिलेशन में है। उसके बाद का पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, मीन पे नहीं है, राइट, बट फर्स्ट ऑसिलेशन में है, तो एटलीस्ट डिस्प्लेसमेंट तो सेम नहीं है कम से कम। ओके, तो दे मे बी इन द सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशन बट द डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी सेम, बट मे और मे नॉट बी बोलने से बेटर है इज नॉट सेम। तो इवन एडजेसेंट पार्टिकल्स का सेम स्टेट नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। एंड हियर इन केस ऑफ stationary wave is very good. All the particles within a loop, या फिर आप बोल सकते हो between two nodes, between two successive nodes, loop मतलब दो नोड, so all the particles between two successive nodes या फिर within a loop are in same phase, हम साथ साथ हैं, एक साथ। Okay, good. Then, but the particles in the adjacent loop, but the particles in the adjacent loop, are out of phase by 180 डिग्री। एक अगर मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है तो दूसरे लूप के सारे पार्टिकल मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। गुड, देन व्हाट यू से एनर्जी प्रोग्रेसिव वेव्स, क्योंकि यहाँ पर डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वही डिस्टरबेंस एनर्जी को लेके जाता है साथ में। सो हियर यू कैन से सिंस डिस्टरबेंस travels from one point to another या फिर from one region to another, hence energy is transferred from one point to another, hence energy is transferred from one region to another या फिर from one point to another, hence energy is transferred from one region to another। अब जब मैं बोलता हूँ वन रीजन टू अनदर ऑफ द सेम मीडियम, ऑफ कोर्स ऑफ द सेम मीडियम, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास एक रस्सी है, मैंने वेव यहाँ पे डिस्टरबेंस यहाँ जनरेट किया, उसके बाजू वाली रस्सी में ट्रांसफर हुआ। इट इज थ्रू द सेम मीडियम। ओके, देन हियर यू कैन से ऑफ कोर्स सिंस डिस्टरबेंस इज लोकलाइज्ड, this wave, stationary wave, does not transfer energy from one point to another, one region to another, since the disturbance is localized, hence localized मतलब जहां पे जनरेट हो वहीं पे रहेगा। the disturbance is localized, hence stationary wave, hence this wave does not transfer energy, from one point to another, from one region to another। so this many points are sufficient। आप चाहो तो आपको अगर स्ट्रेच करना होगा तो बोल सकते हो वेलोसिटी इज नॉन जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, बट एज ए कॉन्सिक्वेंस वेलोसिटी नॉन जीरो था इसलिए एनर्जी ट्रांसफर हुआ और वेलोसिटी जीरो था इसलिए एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ। सो दैट इज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। तो दिस 6 पॉइंट्स आर मोर और लेस सफिशिएंट। कुछ रह गया होगा तो आई पुट डाउन इन द नोट्स, सो डोंट वरी, बट इट इज ऑल गुड, सफिशिएंट। तो अब एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स अभी आपको समझेगा कि हमने पहले प्रॉपर्टीज प्रोग्रेसिव वेव के क्यों लिखे, फिर स्टेशनरी के क्यों लिखे, बिकॉज यू वांट टू कंपेयर समवेयर। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि प्रोग्रेसिव, नाम में ही है प्रोग्रेसिव, इट विल कीप ऑन ट्रैवलिंग। To keep on traveling, it has to transfer energy from one particle to another, right? इसके लिए उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। मतलब जो डिस्टरबेंस हमने एक पॉइंट पे जनरेट किया वो ट्रैवल हो रहा है टू द अनदर पॉइंट ऑफ द मीडियम विद सर्टेन वेलोसिटी। यहाँ पे स्टेशनरी, नाम में स्टेशनरी था, डिस्टरबेंस डज नॉट गो एनीवेयर, जहाँ जनरेट हुआ वहीं के वहीं रहेगा वो, hence velocity is zero। यहाँ पे all the particles have same amplitude, so all the particles vibrate with the same amplitude। Here all the particles within a loop have different amplitudes। Okay, then
Here you see all the particles of the medium perform SHM. यहाँ पे कुछ particles ऐसे हैं जो nodes पे है, node displacement points पे है, they are permanently at rest. Okay. Then here in case of progressive wave, the particles when they cross their mean position, they do not cross their mean position at the same time. हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने convenience से they will cross their mean position. Here all the particles within a loop or between successive nodes cross their mean position simultaneously, and then of course adjacent particles भी phase में नहीं. यहाँ पे सारे के सारे particles in a loop they are in phase, in same state of vibration मतलब, but the particles in the adjacent loop they are out of phase by 180 degree. Then since disturbance travels from one region to another, this wave carries energy and stationary wave does not carry energy. So that's all you need to know. Ab, let us start with next topic and very interesting, harmonics and overtones. So if someone of you play any musical instrument, guitar, flute, so you must have came across this words harmonics या फिर overtone कम से कम सुना होगा. So what happens is when you set a string or air column, अब देखो normally क्या होता है, गिटार पे भी string होता है, violin पे भी string होता है, तो in general we will call this as string. String can be string of guitar, it can be string of violin, it can be string of sitar, it can be a string जिसका एक एंड मैंने वॉल पे बांध के रखा है, दूसरा मेरे हाथ में. They are all strings. And when I say air column, तो air column in general बोल रहा हूं मैं. You can have air column flute also. Flute में भी air का column होता है, right? You can have sonometer also. Sonometer experiment आपने किया होगा, उसमें भी एक air का column होता है. तो हम जो theory develop करेंगे, it will be general. It will be applicable to any type of string. It will be applicable to any type of air column, right? अब harmonics and overtones मतलब क्या? Let us take an example. एक बहुत interesting और बहुत simple concept है and you'll really enjoy this. You see, एक काम करते हैं. Let us take case of string. हमारे पास एक string है. उस string को हमने दो rigid support पे clamp करके रखा है. So we are clamping it और इतना loose नहीं हो. You are stretching and clamping. मतलब उसमें sufficient amount of tension होना चाहिए. तो you stretch it, clamp it, fix कर दो. अब if you pluck it मतलब ऐसा खींच के छोड़ दिया. अब डिपेंड करेगा कि कौन से पॉइंट पे प्लग किया, उस पर डिपेंड करेगा. अगर मैं राइट एट द सेंटर प्लग करता हूं तो व्हाट आई गेट इज ओनली वन लूप. सो इफ यू प्लग दिस राइट एट द सेंटर यू गेट एग्जैक्टली वन लूप. इसको आप बोलते हो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. हम आएंगे बाद में इस पे. वी विल टॉक अबाउट इट दिस मच मोर इन डिटेल लिटिल लेटर. अब अगर मैं किसी और पॉइंट पे प्लग करता हूं, इफ आई प्लग इट एट लेट अस से 1/4 डिस्टेंस पे प्लग किया, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा. समथिंग लाइक दिस यू विल गेट. तो यहाँ पे आपको मिले दो लूप्स. समझ लेना ये दोनों सेम दिखने वाले लूप है. नाउ इमेजिन, बिकॉज otherwise I will have to waste my time in drawing things instead of talking physics here. So more or less. Okay. Then अब अगर मैंने किसी और पॉइंट पे प्लग किया तो I may have 3 loops, 1 and 2. ऐसा भी मिल सकता है, right? Well, दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, ठीक है. बट व्हेन यू थिंक इन डिटेल, दो नोड्स, नोड टू नोड डिस्टेंस इज λ/2. एक, दो और तीन नोड्स, λ/2 एंड λ/2. लैम्बडा सेम लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ सेम था. एक, दो, तीन, λ/2 λ/2 λ/2, 3 λ/2. मतलब वेवलेंथ चेंज हो रहा है. अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. और फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों होगा? क्योंकि फॉर एग्जांपल, डू यू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी?
n लैम्बडा, v इक्वल टू n लैम्बडा। अब ये तो चेंज होने से रहा, क्यों? वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होगा? जब तक मीडियम सेम है तब तक वेलोसिटी चेंज होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग हियर, यू हियर मी, you hear me because my throat generates vibration which are reaching you through air. Speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। अब बाहर हॉर्न बजा, वो भी एयर से आया, राइट? उसका फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा और जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी कुछ और है। बाहर कोई डिस्टर्बेंस होगा, उसका और है, इसका फ्रीक्वेंसी कुछ और है, बट ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट बट स्पीड ऑफ दैट साउंड वेव इज द सेम। तो स्पीड सेम कब तक होगा? जब तक मीडियम सेम हो। तीनों केसेस में मीडियम सेम था, सेम स्ट्रिंग था, ओके, तो वेलोसिटी इज सेम, बट वेवलेंथ चेंज हुआ कि नहीं? वेवलेंथ चेंज, अगर वेवलेंथ चेंज हुआ तो अभी फ्रीक्वेंसी के पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं, चेंज होना ही पड़ेगा। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड को कांस्टेंट रखना है तो राइट हैंड साइड के दोनों वेरिएबल्स या तो कांस्टेंट चाहिए, नो चेंज, एक भी चेंज हुआ तो दूसरे को चेंज होना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो इसका मतलब इन तीनों वेव्स में क्या डिफरेंट है? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां तक क्लियर? तो व्हेन यू बेसिकली set a string or air column into vibration, the vibration consists of many frequencies. एक फ्रीक्वेंसी नहीं है। हाँ, मैं अलग अलग दिखा रहा हूं इसके लिए, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली व्हेन यू डिस्टर्ब you have multiple frequencies overlapping. So you may have multiple frequencies overlapping, something like this, right? So when air column or a string is set into vibrations, the vibration consists of फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, along with higher frequencies. एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक गिटार का स्ट्रिंग है, उसको वाइब्रेट कर दिया, पहला फ्रीक्वेंसी मिला 10, राइट? इसको बोल दूंगा मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये सबसे छोटा है, सबसे बेसिक, इट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब क्या एक ही होगा? मैंने अभी बताया, यू हैव मेनी, सो यू मे हैव हायर फ्रीक्वेंसीज 20, 30, 40, 50, 60, you may have only 10, 30 and 50 and 70, ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो व्हाट इज हैपनिंग इज, जब भी आपने एक सिस्टम को, यहाँ पे स्ट्रिंग को वाइब्रेशन में सेट किया, तो इट विल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी along with higher frequencies. अब हार्मोनिक्स का मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि both of these terms are important. It is important for you to know what is harmonic, what is overtone. अब फॉर एग्जाम्पल, पहला फ्रीक्वेंसी था 10, इसको मैं बोल रहा हूं n, और इसको बोल दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक ये जो वर्ड है, हार्मोनिक, दिस वर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट fundamental frequency with all its integral values. Harmonic, this word is used to indicate fundamental frequency along with all its integral multiples. All integral multiples मतलब 10, 20, 30, 40, 50 and so on. मतलब n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n. Okay? ये जो सबसे पहला वाला फ्रीक्वेंसी था, इसको क्या बोला आपने? फंडामेंटल, और इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, also called as फर्स्ट हार्मोनिक। जो सेकंड है उसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। तो मतलब जब पहला फ्रीक्वेंसी है उसके दो नाम है, फंडामेंटल, क्यों फंडामेंटल? सबसे छोटा वही था, उससे छोटा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड इज कॉल्ड एज second harmonic, third is called as third harmonic, and then fourth harmonic, and then fifth harmonic, and so on and so forth.
राइट? दिस शुड बी वेरी क्लियर. मैं आखिरी बार एक बार और रिपीट करता हूं. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. द कॉन्सेप्ट इज यू हैव अ स्ट्रिंग और एयर कॉलम. आपके पास एक स्ट्रिंग है या एयर कॉलम है, आपने उसमें वाइब्रेशन सेट कर दिए. अब जब आप वाइब्रेशन सेट कर रहे हो तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज. सबसे छोटा वाला फ्रीक्वेंसी उसको बोल देंगे फंडामेंटल, और उसके साथ साथ बाकी फ्रीक्वेंसीज भी होंगे, राइट? हार्मोनिक ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब when you have fundamental frequency along with all its integral values, all its integral multiple. जैसे अगर सबसे छोटा n है तो 2n, 3n, 4n, 5n सारे के सारे उसमें होंगे. तो harmonic is a word used to indicate fundamental frequency along with all the integral multiples. All, nothing is missing. n तो 2n, 3n, 4n, right? तो n हो गया फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, 2n हो गया सेकंड हार्मोनिक, 3n हो गया थर्ड हार्मोनिक. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो स्ट्रिंग आपने वाइब्रेट किया था उसमें n के बाद, मतलब 10 के बाद डायरेक्ट 30 आया, n के बाद डायरेक्टली 3n आया, उसके बाद सीधा आया 50, मतलब 5n. मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उससे लार्जर फ्रीक्वेंसी. रिमेंबर दिस वर्ड, ओवरटोन इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर ग्रेटर देन फंडामेंटल. यहां पे हमने क्या बोला? हार्मोनिक्स आर यूज्ड टू इंडिकेट फंडामेंटल अलोंग विथ इंटीग्रल वैल्यूज. हम यहां पे बोल रहे हैं ओवरटोन्स आर यूज्ड टू इंडिकेट फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल को छोड़ के जो पहला प्रेजेंट होगा. सो ओवरटोन्स आर यूज्ड टू इंडिकेट frequencies greater than fundamental frequencies which are present, not absent, which are present, right? तो पहला कितना था? n. उसके बाद कौन सा है? इसको बोलोगे फर्स्ट ओवरटोन. फंडामेंटल के बाद जो पहला प्रेजेंट है दैट इज फर्स्ट ओवरटोन. लेकिन फर्स्ट ओवरटोन इज ऑल्सो थर्ड हार्मोनिक. वेरी गुड, इट इज थर्ड हार्मोनिक. 5n is second overtone, that is fifth harmonic. Then हो सकता है आपके पास 7 है, this is third overtone and seventh harmonic. Okay, तो यहाँ पे in short it is just like you. तुम आओ मत आओ, मैं रोल नंबर देते रहूंगा. रोल नंबर 1, 2, 3, 4 sequentially, n, 2n, 3n, 4n harmonics along with first fundamental. यहां पे it is like जो आया पहला, जो आया फंडामेंटल, रोल नंबर 1. फिर दूसरा आया आज से तेरा रोल नंबर 3, राइट? तो जो पहला प्रेजेंट होता है फंडामेंटल को छोड़ के दैट इज फर्स्ट ओवरटोन. फिर सेकंड फंडामेंटल को छोड़ के दैट इज सेकंड ओवरटोन. सो दिस इज important and you will need this later. So now let us write down little bit. थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा because otherwise you will not remember. So first of all, how to write in exam is also important. कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या किया वो बताना है. क्या किया हमने क्या किया था? एक स्ट्रिंग था, उसको क्या किया? वाइब्रेट किया. या तो स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया या फिर किसको वाइब्रेट किया? Either you vibrate string or you vibrate air column. Okay, so you will have to specify this. Just a minute, let me clean this. Okay, इसको रख देते हैं, बाद में काम में आएगा हमारे. We will need this later. And so when a string or air column is set into vibrations. The vibrations consist of fundamental frequency
fundamental frequency, fundamental मतलब smallest, fundamental frequency along with certain higher frequencies, along with certain higher frequencies. एक हार्मोनिक आप ये वर्ड यूज करते हो टू इंडिकेट फंडामेंटल along with all its integral values. तो हार्मोनिक is used to indicate, और ये याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, हार्मोनिक इज यूज टू इंडिकेट फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल को फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे लेकिन फंडामेंटल को फर्स्ट ओवरटोन नहीं बोलेंगे. तो हार्मोनिक इज यूज्ड टू इंडिकेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स. So let n, 2n, 3n, 4n are the frequencies of vibration. Frequencies of vibration in a stretched string. Frequencies of vibrations in a string. Here n is known as fundamental frequency. N is known as fundamental frequency or first harmonic. 2n is known as second harmonic. 3n is known as third harmonic. So 3n is known as third harmonic. 3n is known as third harmonic, and so on. चौथा होगा 4n तो fourth harmonic, and so on. This is all you need to know. Then overtones. Overtone is used to indicate frequencies greater than fundamental. Very good. Which are present in the vibrations. So overtone is used to indicate frequencies greater than fundamental frequency, which are present in the vibration, vibrations. Which are present in the vibrations. Now the idea here is, जरूरी नहीं है हर बार आपके पास n, 3n, 5n ऐसा होगा. फॉर एग्जाम्पल पहला n है, फिर 2n है, फिर 3n है, फिर 4n है, 5n and so on so forth. अब ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, n के बाद 3n then 5n हो सकता है. ऐसा भी लगता है n के बाद 4n and then 8n, राइट. ये सारे के सारे फंडामेंटल एंड फर्स्ट हार्मोनिक. This one is second harmonic and first overtone. This one is third harmonic and first overtone. This one fourth harmonic and first overtone. तो सिंपल है ये. और यहाँ पे ये है सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक. ये है सेकेंड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक. ये है एट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन एंड एट हार्मोनिक. वेरी गुड. सो अभी एग्जांपल आपको जो चाहिए वो बोल सकते हो. लेट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन. फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज
are present. So you have frequencies which are present that are n, 3n, 5n, 7n, so on. Here you can say n is fundamental frequency, n is fundamental frequency, 3n is first overtone and third harmonic. 5n is second overtone and fifth harmonic. All right, and so on and so on. So that is what you need to know. Good. तो अगर यहाँ तक समझा है तो we can now go ahead and see what are different modes of vibrations of a stretched string. हमारे पास एक stretched string है, it can vibrate in different modes. तो आज हम सिर्फ introduce करेंगे concept को and we will see slightly little bit at least fundamental frequency का हम equation derive कर लेंगे. So modes of vibrations of a stretched string. So you can say vibrations in a string. सबसे पहले before we derive equation for fundamental frequency या फिर any frequency in general, अभी आपने बताया v equal to n lambda, correct? So you should know what is the formula of velocity, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोग्रेसिव वेव है. हाँ, ये स्टेशनरी वेव है, मैं मानता हूँ, दिस इज स्टेशनरी वेव, ओके, बट स्टेशनरी वेव में दो प्रोग्रेसिव वेव है, तो ये वेव तो प्रोग्रेस होगा ही और ये वेव भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोग्रेस होगा. इन दोनों का इंटरफेरेंस स्टेशनरी है. गुड. तो यू शुड नो ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसका वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है. डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग? नहीं समझ में आया? समझा देता हूं. अगेन टेक एग्जांपल ऑफ साउंड. व्हेन आई एम स्पीकिंग, दिस लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस, they are traveling through medium which is air, right? इसमें 330 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है. पानी में सेम होगा क्या? वेरी गुड. किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन मीडियम पे, लेकिन किसी फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, जैसे कि डेंसिटी हो गया, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल, वैसे ही ये जो आपके पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, उसमें से अगर आपने एक वेव को, प्रोग्रेसिव वेव को पास कर दिया, तो उसका स्पीड मीडियम पे डिपेंड करेगा, राइट? लेकिन मीडियम के किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, लाइक डेंसिटी, करेक्ट? क्या क्या है इसके पास? दो ही चीज है, एक तो मास है, एक लेंथ है, मतलब उसके पास डेंसिटी है. दूसरा क्या है? टेंशन. There are only two things. One is linear density, and I hope you know what is linear density. What is linear density? What is density in general? Mass per unit. Simple. I have volume. This is volume क्योंकि 3 डायमेंशन है ना, x, y और z, राइट? इस वॉल्यूम में कितना मास, उसको आप बोलते हो डेंसिटी. यू आर हाफ करेक्ट. यू कॉल दिस एज वॉल्यूम डेंसिटी, राइट? वॉल्यूम डेंसिटी, वो भी वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्योंकि यू आर मेजरिंग मास, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट? अब मेरे पास अगर एक सरफेस है, मान लो आई हैव अ सरफेस समथिंग लाइक दिस. आई हैव अ सरफेस. इस सरफेस पे अगर मैंने मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, तो अभी मास अपॉन वॉल्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. फिर क्या करोगे? मास अपॉन एरिया. उसको आप बोलोगे सरफेस मास डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया में कितना मास, करेक्ट? ये वायर है, ये 1 डायमेंशनल वायर. इस स्ट्रिंग के पास और कुछ है ही नहीं. दिस स्ट्रिंग हैज नथिंग, जस्ट लेंथ. और मास कहां पे होगा? फिर लेंथ पे, राइट? तो फिर आप मास अपॉन लेंथ लोगे, उसको बोलोगे लीनियर मास डेंसिटी. तो आपके पास जब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होता है, इन दैट केस वेलोसिटी
किसका? वेव का. Depends on these two factors, tension and linear mass density, and velocity is given by under root of tension upon m, where this m is not mass, ये linear mass density है. This small m is mass per unit length. एक मीटर में कितना मास? किलोग्राम पर मीटर, right? So whenever a progressive wave travels through a stretch string under tension, its velocity is given by under root of t by m, where m is mass per unit length, it is linear mass density. Is this clear? If this is clear, then we can talk about modes of vibration of a stretch string, and that we will do in the next session. So that's it for today.